Welcome to my channel Economics Made Easy. Today I'm going to teach you Introduction to Microeconomics, Class 11. Today I have taken the topic Introduction to Microeconomics. Then in that, first of all, we need to know the meaning of microeconomics. Micro means small, economics means the study of financial behavior of any individual is known as, detail of any individual is known as microeconomics. So microeconomics studies individual behavior. And for the same, if we are going to talk about the topics which we have to cover under microeconomics are consumer behavior. Under consumer behavior, we are going to study consumer equilibrium, demand and elasticity of demand. Second is producer behavior. Under producer behavior, we need to study, first one is production function, second one is cost function, third one is revenue, and the fourth one is producer equilibrium. And after that, we need to study supply, elasticity of supply, and then we come to the point that is forms of market. Under forms of market, there are various forms of market. And apart from that, we need to study determination of price in the perfect competition. Hope you all have understood the meaning of microeconomics. Now we are going to study central problem. This is also termed as problem of allocation of resources. So there are three major problems which every economy, whether it is developed, underdeveloped or developing, every economy has to face these problems. And what are these? These are, first one is what to produce, second one is how to produce, and the third one is for whom to produce. Now individually we are going to talk about is what to produce. What to produce में होता क्या है? What to produce states what is the good to be produced in an economy. This is the question for both. It is for the government as well as for the private. ये गवर्नमेंट के लिए भी क्वेश्चन है और जो प्राइवेट है, there is socialistic and the capitalistic. चलिए यहाँ पे हम ये देखेंगे, there are two goods. अब इसको समझते हैं. एक है war good और एक है consumer good. या फिर हम बोल सकते हैं एक है capital good और एक है consumer good. तो a capitalist has to decide which is to be produced. या फिर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसको प्रोड्यूस क्या करना है. अब there is a confusion what to produce. Then the solution is production is done as per the situation prevailing in the economy. Situation कैसा है? अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा. अगर वॉर गुड्स की डिमांड ज्यादा है तो वॉर गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा. या फिर अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा. वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस थ्री, वी आर गोइंग टू टेक ओनली ऑल्टरनेटिव. या तो हम वॉर गुड्स और कंज्यूमर गुड ले लें, या तो फिर हम कैपिटल गुड या फिर कंज्यूमर गुड्स ले लें. ठीक है. नाउ अब हम ये देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें आती हैं. एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव. ये लेबर इंटेंसिव क्या होता है? लेबर इंटेंसिव इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन विच ह्यूमंस आर यूज्ड एज लेबर. जो फैक्टर है प्रोडक्शन का वो कौन है यहाँ पे? लेबर्स. ठीक है ना. मतलब मैन मेड थिंग्स जो हम बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज होता है, मशीन्स का यूटिलाइजेशन मिनिमाइज्ड है. इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेज करता है, ये चीपर है. बट ऑन द अदर साइड इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. इट हैज फ्यू लिमिटेशंस एज वेल. क्या क्या है वो? व्हाट आर दोस? वो है दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. दूसरा हम देखेंगे कैपिटल इंटेंसिव. अब ये कैपिटल इंटेंसिव क्या है? कैपिटल इंटेंसिव मींस द प्रोडक्शन व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज, दैट इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव. अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव का कुछ बेनिफिट, तो कैपिटल इंटेंसिव के बेनिफिट क्या क्या है? पहला है इट डज मच प्रोडक्शन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस क्वालिटी गुड्स. दूसरा
अब हम देखेंगे इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहला है इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा है कि इट इज कॉस्टलियर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी के पास टाइम कितना है, पैसा कितना है। तो इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव, इधर टू यूज कैपिटल इंटेंसिव और कैन यूज बोथ। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में इज द क्वेश्चन फॉर कैपिटलिस्ट, क्योंकि कैपिटलिस्ट तो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है और प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट उनको जनरेट तभी हो पाएगा जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल होने में सक्सेस हो पा रहे हैं। और सेल कब होगा? जब लोगों के पास इनकम होगी। देन दिस इज वेयर कैपिटलिस्ट दे हैव टू टारगेट फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मींस द गुड्स प्रोड्यूस्ड for which section of the society, whether it is for the lower class, middle class or upper class society. So this is what they have to decide कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। Means the good produced should be sold or should reach to each and every section of the society. For example, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं तो हमको वहां पे 60, 83 इंचेस के भी टीवी मिलते हैं। ब्रांड अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें सोनी, सैमसंग, सैमसंग, ठीक है, उसी तरीके से वो ये क्या है, इनमें वैरायटीज होते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे तो उनमें क्या होता है, वैरायटीज होते हैं। या फिर हम लाइव एग्जाम्पल अगर हम ले लें मोबाइल, सेलफोन, सेलफोन में एप्पल है। अगर हम बात करें 11 प्रो, दैट इज नॉट सभी के इनकम में अवेलेबल वो नहीं है, ठीक है। उसको जो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है वही प्रेफर कर सकते हैं एंड दैट इज मेड ओनली फॉर द अपर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वेयरएज अगर हम बात करें चाइनीज मोबाइल की तो चाइना मोबाइल कैन नॉट बी परचेज बाय रिच क्लास, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पुअर क्लास के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, चलिए अभी अभी हमने डिस्कस किया था मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उसके कुछ कॉजेज हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम, है ना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाई डज सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस। सेंट्रल प्रॉब्लम होता क्यों है? पहली जो चीज है, फर्स्ट वन इज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मेड है या फिर वो नेचुरल है, दे आर ऑल लिमिटेड इन नेचर। सभी के सभी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसको, आपके पेरेंट ने आपको 500 का नोट दिया एज अ पॉकेट मनी, तो आपके पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज। दैट इज स्कार्स इन नेचर, ओनली यू हैव 500 रुपीज, दैट इज स्कार्स इन नेचर, वो लिमिटेड है, सिर्फ 500 आपके पास। दूसरा हम उसके पास आते हैं, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं दे आर ऑल हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, सच एज वो अगर आपके पास 500 रुपया है तो उस 500 रुपए का बहुत सारे यूजेस हैं, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ दैट 500 रुपीज। फॉर एग्जांपल यू कैन बाय अ बुक, यू कैन गेट योर मोबाइल रिचार्ज, स्कूटी में पेट्रोल डलवा सकते हैं आप, कोई बुक परचेज कर सकते हैं, पेन परचेज कर सकते हैं, फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ दैट 500 रुपीज। इट डज नॉट फोर्स यू टू बाय एनी सिंगल प्रोडक्ट, या फिर कहीं एक जगह पे आप खर्च करें, दैट इज नॉट कंपल्सरी and it does never force anyone to spend it on a single piece of work. तो there is alternative uses. चलिए अब हम आते हैं क्या, human wants are unlimited. Human wants can never be satisfied. If one is fulfilled, another one is ready to come up. आपको पहले बाइक चाहिए थी, पापा ने आपको बाइक दिला दिया। अब बाइक से आप क्या कार देखेंगे, अगर कार भी दिला दी अगर कोई से भी, फिर उसके बाद से विल गो फॉर द हायर मॉडल एंड सो ऑन। घर में अगर आज टीवी है, पहले एलसीडी, फिर उसके बाद से एलईडी, उसके बाद से ओएलईडी, उसके बाद से एज। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, नेवर बी सेटिस्फाइड। चलिए अब हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी उसको हम बोलते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Production possibility curve is used to sort out the central problem.
what, how and for whom to produce. अब हम ये देखेंगे कि इसका मतलब है क्या, what is the meaning of production possibility curve. Production possibility curve shows combination of two alternative goods which an economy can produce with the given resource, and the second one is given technology. क्या, फिर से देख लीजिए. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows all possible combination of two goods which an economy can produce with the given resource and given technology, that is known as PPC, production possibility curve. यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है दैट इज कॉन्वेक्स. देखिए जो पीपीसी कर्व है दैट इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन. कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग. ये क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है ये, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर 4 पॉइंट्स 1 2 दैट इज ए बी सी एंड डी. अब यहाँ पे हम देखेंगे दो चीजें. पहला तो ये वाला पॉइंट है डी. डी क्या दिखाता है, डी शोज अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. दूसरा है ए एंड बी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन पीपीसी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन पीपीसी शोज ऑप्टिमम, या फिर आप बोल सकते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स. एंड एनी पॉइंट आउटसाइड, एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. अब आप बोलेंगे सर ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्यों है. ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन इसलिए है बिकॉज ऑल द रिसोर्सेस of an economy are already fully employed. Now economy does not have any resource left to be employed so that production can increase and reach to point C. That is why this is termed as unattainable combination. चलिए इसी में फर्दर हम ये देखेंगे कि मैंने अभी बताया था कि this shows combination of two alternative goods which an economy can produce with the given resource and given technology. तो उसी में हम ये देखेंगे कि एक होता है OC, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अभी हमने देखा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट दे कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी से रिलेटेड है एंड एमओसी इज आल्सो रिलेटेड विद द सेम. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस यूनिट फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव. इट इज द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस यूनिट फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसको. देयर इज अ फील्ड दैट इज व्हाट लिमिटेड रिसोर्स. हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है. यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इसमें कंप्लीट राइस ग्रो कर सकता हूं या फिर मैं इसमें कंप्लीट कॉटन ग्रो कर सकता हूं. लेकिन डिमांड दोनों की है इकोनॉमी में. देन आई विल हैव टू प्रोड्यूस बोथ कॉटन एज वेल एज राइस. कॉटन, ठीक है. अब यहां पे हम ये देखेंगे कि दोनों का ही यूनिट सैक्रिफाइस किया गया है. क्यों सैक्रिफाइस किया गया है, क्योंकि ना तो कंप्लीट कॉटन की डिमांड थी और ना ही कंप्लीट राइस. देन बोथ आर डिमांडेड इन द इकोनॉमी एज पर देयर रिक्वायरमेंट. प्रोडक्शन आर डन एंड दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस यूनिट फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव. क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का ही, राइस का भी सैक्रिफाइस किया गया यूनिट और कॉटन का भी यूनिट सैक्रिफाइस किया गया है.
then the value of that sacrificed unit is termed as opportunity cost. And दूसरा हम देखेंगे marginal opportunity cost. With the increase in population, जो eatable है, that is what rice. Rice की जो demand है, that has increased. Rice का demand क्या हो गया? That has increased. तो जब राइस का डिमांड इंक्रीज होगा, रिसोर्स तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है. जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसी में हमको प्रोडक्शन करना है, तो जो दूसरा गुड है दैट इज कॉटन, कॉटन को हमको क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा. देखिए एडिशनल यूनिट ऑफ कॉटन इज सेक्रीफाइस्ड फॉर द एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन ऑफ राइस. देन द एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस ऑफ कॉटन का जो वैल्यू है दैट इज टर्म्ड एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर हम उसको बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है ना. अब हम ये देखेंगे कि जो PPC है, PPC कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है इंक्रीजिंग. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन.